عبادگاہ میں فوج سعید آئی رسیدات ہی سغرا کے گھر میں عید آئی تپے کون گئے ملال دور ہوا عیش کے خرینے سے بخار سے غم دل دار غرض کے حضرت ام البنی کو بلوایا وہ آئی تو سرے تسلیم اٹھ کے نوڑایا وہ ہنس کے بولی کیے کیوں یار مجھ کو فرمایا کہا مریض نے خوش ہو کے شہ کا خط آیا ہمارے دل کو فقط نام بر نے چین دیا محمد عربی کو محمد عربی کو حسین دیا کہہ کے مادر عباس کو لیا محمد حنفی کے گھر آئی دختر شاہ وہ منتظر تھے یہ نام شہ زیجا سلام کرتے ہی کہنے لگی بنا لو اب سناؤ امام غریب کا نامہ پڑھو مریض کیا پڑھو مریض کیا اخی کا لفظ جو القاب نے میرے لکھا فقط یہ بندہ نوازی ہے یا امام خدا تیرا غلام ہے عباس میں غلام اس کا ہزار ہے قدم سے حضور کے حجرا لیا جو نام جدائی تو آنسو بہنے لگے سلام پڑھ گیا سلام پڑھ گیا وفونے فکر سے سکرات سخت گھبرائی چچا نے اپنے قلمدان کو اٹھا لائی اور التماس کیا اے حسین کے بھائی مجھے تو ہے نہ توانائی اور نہ بینائی میری طرف سے وہ القاب لکھو بابا کو کنیزے لکھتے ہیں جس طرح کنیزے لکھتے ہیں وہی تو گئی دن عید فطر کا آیا گھر آ کر مجھے ہم جولیوں نے رلوایا کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا کوئی یہ بول کے عیدی میں نے یہ پایا ہر ایک خوش تھا مگر میرے لب پہ نالے تھے سفر میں سب میرے نظر میں پھرتا ہے عید گزشتہ کا آنا وہ
کوئی دام اکبر نہ دھوپ سے جانا بہن کے واسطے میوے خرید کر لانا وہ اماں بانو کا ہر دم گلے سے لپٹانا بجبر اب تو بغل گیر جس سے ہوتی ہوں بہن سکے بہن سکے الصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين المصطفين المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني الكرشي العاشر مولانا بالقاسم محمد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن جیسا کہ کل کی مجلس میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ ہم ہر سال امام مظلوم کربلا کا غم کیوں مناتے ہیں اور ہر سال شہدائے کربلا یاد کو کیوں تازہ کرتے ہیں. تو کل کچھ روایتیں میں نے پیش کی تھی جس میں خود ہمارے ائمہ نے حکم دیا ہے عزاداری کے سلسلے میں کیا آپ مجلسوں کو برپا کیجیے, ہمارے امر کو زندہ کیجیے, یعنی ہمارے فضائل کو بیان کیجیے, ہمارے علوم کو دوسروں تک پہنچائیے. تو یہ جو دلیل تھی عزاداری کے اقامہ کے اوپر روایات میں, اس کے جواز کے اوپر, اس کے سنت ہونے کے اوپر, یہ روایت. لیکن اپنی حساب سے بھی, اپنی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس کے اوپر اپنی دلیلیں بھی ہیں. آپ معاشرے, سماج اور ملک کے اندر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کے مشاہدے میں بھی یہ چیز ہے کہ جب کوئی اہم شخصیت ہوتی ہے اور وہ قوم یا پبلک لیول پر یا ملک لیول پر یا ورلڈ لیول پر اگر اس کے خدمات ہوتے ہیں تو قوم اسے یاد کرتی ہے. یہ فطری چیز ہے کہ انسان اسے یاد کرتا ہے. بچے اسکولوں میں جاتے ہیں, فلاں جیسے فلاں کرو فلاں دے, یہ کس لیے؟ کیونکہ اس نے عظیم قربانی دی ہے, یا ملک لیول پر, ملک کی سطح پر یا قومی لیول پر اس نے ایک عظیم قربانی دی ہے. اس وجہ سے اس کا نام آج بھی زندہ ہے, اسے لوگ یاد کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے عقل بھی ہماری یہ کہہ رہی ہے کیونکہ حسین ابن علی کا دین محمد پر احسان, انہوں نے قربانی دے کر کے دین ہم تک پہنچایا. اس لیے ہماری فطری اور عقلی بھی طور پر دیکھا جاتی ہے ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی یاد منائیں, ہم ان کا غم منائیں. لہذا حسین ابن علی علیہ السلام کی عظیم شخصیت ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین, حسین منی وانا من حسین, احب اللہ من احب حسینا. حسین
हुसैन सिर्फ मिनट अस्बार। तो एक नए तरह से इस पे बहस करना चाहता हूँ। बहरहाल अजहर भाई मुतमईन रहें, वक्त के अंदर इंशाअल्लाह जो है आपके यहाँ भी हम लोग चलेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पुरानी हो जाएगी बहस, लेकिन मैं रोक दूंगा इंशाअल्लाह। फिर बाकी हिस्सा जो इसका कल मैं आपके सामने पेश करूंगा, क्योंकि ये इतनी मशहूर और मारूफ हदीस है, शायद कोई ऐसा हो जिसने ना सुना या उसकी याद ना हो सकता है छोटे बच्चे, लेकिन बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसके एतबार और मोतबर होने के एतबार से बात करना चाहता हूँ कि इतनी मशहूर और मारूफ हदीस है कि मुतअद्दिद खुतबा से आपने इस सिलसिले में मजलिसें सुनी होंगी, बल्कि अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब खुदा करीम के रहमत करम से दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने भी इस सिलसिले में हुसैन मिनी नाम की पूरी मजालिस की किताब यानी इतनी मोतबर और मशहूर हदीस है। तो अगर हम इसकी सनद के हिसाब से बात करना चाहें, हमें कैसे पता चले कि ये हदीस बहुत ही मोतबर है, तो हमको सबसे पहले जो इसके मनाबे हैं, यानी जिन किताबों में ये हदीस नक़ल हुई है और जिन लोगों ने नक़ल किया है उसके बारे में तहक़ीक़ करनी होगी। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये एक अजीम हदीस जो बहुत ही मशहूर है, जिस पे बहुत सारे फतवा में किताबत लिखी है, तो उसके सनद और मोतबर होने के हिसाब से मैंने देखा कि फरीक़ैन ने भी इसे नक़ल किया, यानी सुन्नी उलमा ने भी इसे नक़ल किया अपनी किताबों में, और वो भी मोतबर किताबों में नक़ल किया, और हमारे शिया उलमा ने भी इस हदीस को अपनी मोतबर किताबों में नक़ल किया। तो सुन्नी उलमा में अगर हम इसका जायजा लेते हैं तो उसमें सबसे मशहूर शख्सियत इब्ने अबी शैबा है, जिनकी किताब है अल मुसन्नफ। और इब्ने अबी शैबा एक ऐसी शख्सियत है कि उनके बड़े उलमा ने भी उसकी तारीफ की है। ये बहुत ही मोतबर और मशहूर और मालूम हस्ती है इब्ने अबी शैबा, जिन्होंने अपनी किताब अल मुसन्नफ में इस हदीस को नक़ल किया है, वो जनाबे बुखारी के उस्ताद। आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि बुखारी लिखने से पहले उन्होंने अपनी किताब अल मुसन्नफ में इस हदीस को नक़ल किया। लिहाजा अगर हम सुन्नियों की किताब के हवाले से भी अगर इस हदीस का हम जायजा ले रहे हैं तो इस हदीस की सेहत और सही होने में शक और शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। ये हदीस बिल्कुल सही है, सही उस सनद है, क्योंकि मोतबर रावी से नक़ल किया और उनकी मोतबर किताबों में नक़ल हुई है, मोतबर किताबों में नक़ल हुई। अच्छा, वो हदीस पूरी क्या है? वो अब ये शियों में जो सबसे मोतबर किताब है इब्ने कौलवे की किताब कामिलुस सियारा, जो सबसे कदीमी हदीस की किताब है, उन्होंने भी इस हदीस को अपनी उस किताब के अंदर नक़ल किया। उसके अलावा जनाब शेख मुफीद ने भी अपनी किताब अल इरशाद में इस हदीस को नक़ल किया। आपने इस हदीस से मुताबिक बहुत सारी गुफ्तगू सुनी होगी, लेकिन इस हवाले से चूंकि यहाँ तो अल्लाह का मजमा है और ये इल्मिया है, लिहाजा थोड़ा सा मैं इल्मी बात इस सिलसिले में कर रहा हूँ कि आपको इस हदीस का अंदाजा हो जाए, इसकी अहमियत मालूम हो जाए कि ये एक ऐसी हदीस है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो। शिया तो कबूल करता ही है, लेकिन अगयार भी इसका इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा दोनों की किताबों, मोतबर किताबों के अंदर यह हदीस नक़ल हुई है, और जिस रावी से फरीक़ैन ने नक़ल किया है वो यादा बिन मर्रा अल आमिरी है। चाहे मुसन्नफ इब्ने शैबा ने इसे नक़ल किया हो या जो है इब्ने कौलवे ने नक़ल किया हो, उन्होंने दोनों फरीक ने किससे नक़ल किया है? यादा बिन मर्रा अल आमिरी से। लिहाजा ये क्लियर हो गया कि यह हदीस मोतबर है, इसमें शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। तो अब ये हदीस किस वक्त पैगंबर ने अपनी ज़बान पर जारी की, दोनों ने नक़ल किया उसकी पूरी तफसीर कि यही यादा बिन मर्रा अल आमिरी
पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं दावत पे जा रहे थे, कहीं दावत पर जा रहे थे, रास्ते में देखा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेल रहे बच्चों के साथ। तो नबी करीम ने देखा, एक मरतबा मुस्कुराए, बच्चे को बुलाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आपने बुलाया अपनी तरफ। जाहिर सी बात है बच्चों की फितरत है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो एक मरतबा आगोश को फैलाया, नहीं है बरम बचपना है। उसके बाद ये खुद याला बिन मर्रा अल-आमरी नकल करते हैं कि पैगंबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पकड़ा और एक हाथ यहाँ पे रखा, यानी ठुड्डी पर, और दूसरा चेहरे मुबारक को ऊपर उठाया, बोसा लिया। फिर ये हदीस फरमाई, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और अल्लाह उसे दोस्त रखता है जो हुसैन को दोस्त रखता है। तो अब ये देखना ये है कि ये जो इस सेंटेंस और इस हदीस की बनावट है, आया इसकी मिसाल कहीं के ऊपर है कुरान मजीद में? कोई ऐसा सेंटेंस और इस किस्म का सेंटेंस मौजूद है जो इस तर्ज का हो? क्योंकि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कि मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है। तो ये किस वक्त कहा जाता? इससे इस हदीस की अहमियत और उजागर हो जाएगी। इस हदीस से मुताल्लिक और भी ज्यादा गहराई में मालूमात हो जाएगी कि पैगंबर ने क्यों ये कहा कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कि मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो अरब जब किसी शख्स से शदीद मोहब्बत का इजहार करते हैं तो वहां के ऊपर मिन्नी का इस्तेमाल करते हैं कि वो मुझसे है और मैं उससे हूं, जैसा कि पैगंबर ने इस्तेमाल किया। यानी शदीद इजहार मोहब्बत के लिए, यानी किसी शख्स से जब शदीद मोहब्बत अरब करता है तो इस तरीके के सेंटेंस और जुमले को इस्तेमाल करता है कि वो मुझसे है और मैं उससे हूं। अब इसी तरीके से जब शदीद नफरत का इजहार करना होता है तो अरब ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि वो मुझसे नहीं और मैं उससे नहीं। ये दो तरफा, यानी अगर शदीद मोहब्बत का इजहार करना तो वो जुमला, और अगर शदीद नफरत का जो इस्तेमाल करना है तो वहां के ऊपर कि मैं उससे नहीं और वो मुझसे नहीं है। लिहाजा कुरान मजीद में भी इसी तर्ज की आयत मौजूद है। फलम्मा फसला तालूत बिल जुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरब मिनहु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी। देखिए कुरान मजीद के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। इसी तरीके से एक और हदीस जनाब शायर सुदूक ने अपनी किताब में नकल किया, फहुवा मिन्हु मौला काना से मुतअल्लिक, कि फहुवा मिन्हु व अना मिन्हु बुग़्ज़ुहु निफाक़ुन व हुब्बुहु ईमान। तो यहाँ के ऊपर भी इस्तेमाल हुआ है मौला काना से भी मुतअल्लिक। लिहाजा अब इस हदीस से यह अंदाजा लग रहा है कि हुसैन और पैगंबर के दरमियान शदीद मोहब्बत और शदीद राबिता था। पैगंबर और हुसैन के दरमियान जो राबिता था वो अपनी इंतहा में पहुंच चुका था। तभी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैनुन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो हुसैन मुझसे है, ये तो शदीद इलाका और जो रंग था नाना और नवासे के दरमियान उसका तो अंदाजा हो गया। लेकिन ये बात नहीं समझ में आ रही है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मैं हुसैन से हूं, भाई हुसैन मुझसे है, ये तो समझ में आ रहा है हुसैन छोटे हैं, आप नाना हैं, लेकिन नाना नवासे से कैसे, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो आप इस हदीस को हर जाविये से अगर देखेंगे तो एक पहलू इसका ये है कि नाना
दूसरे जाविये से भी अगर देखेंगे आप तो हुसैन ने कुर्बानी दे करके अपने नाना के दीन को बचाया है। अगर हुसैन कुर्बानी न देते तो शब एक नबूवत और शब एक और शब एक रिसालत और शब एक तौहीद ये कब का बुझ चुका होता। तो अगर देखा जाए तो तौहीद और नबूवत के दरमियान जो हल्का इत्तिसाल बाकी है वो हुसैन अली इब्न अबी तालिब की वजह से है। बल्कि लफ्जों को बदल कर ये कह दूं कि आज जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बाकी है वो हुसैन की वजह से बाकी है। इसलिए पैगंबर ने कहा कि मैं हुसैन से हूं। सुभान अल्लाह तो उसी हुसैन की याद मनाने के लिए हम सब जमा हुए। अब ज़हमत को मैं तमाम कर दे रहा हूँ पर अब कुछ मतालिब और रह गए, इंशाअल्लाह कल उसकी जो तकमील कर दूंगा। आज शब जुमा है और रिवायात के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए चाहे वो अंबिया हों या औसिया हों या मलाइका हों, शब जुमा सब इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए वहाँ ऊपर जाते हैं। हत्ता इमाम ज़माना भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला जाते होंगे, हर शब जुमा जाते होंगे। लेकिन आपकी ज़ियारत की कैफियत दूसरों से मुख्तलिफ होगी। कभी आप खैमों की तरफ जाते होंगे, कभी कब्र हुसैन की तरफ आते होंगे, कभी कब्र हज़रत अब्बास की तरफ तशरीफ ले जाते होंगे, कभी सैयद सज्जाद के खैमे में जाते होंगे, कभी अब्बास अलमदार के खैमे में जाते होंगे। लेकिन जब वहाँ किसी को नहीं देखते होंगे तो आपके दिल पर क्या गुजरती होगी आज़ीज़ों। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी की ज़ियारत को जाते हो। यानी जितने भी चाहे वो अंबिया हो, चाहे औसिया हो, चाहे अइम्मा ताहिरीन हो, काज़मैन से, नजब से, सामरदा से, सब हुसैन इब्न अली की ज़ियारत के लिए तशरीफ लाते हैं। लेकिन इमाम हुसैन से मुताबिक रिवायात के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की किसी की ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाते हो। उसकी इल्लत जो समझ में आ रही है वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिन सख्ती और मुसीबतों को बर्दाश्त किया है वो किसी ने बर्दाश्त नहीं किया है। अरे वो शब आशूर के दिन से थके हुए सो रहे हैं, इसी वजह से सब इनकी ज़ियारत को आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी की ज़ियारत को नहीं जाते। आज मुहर्रम की 2 तारीख है। तारीख के हिसाब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज के दिन करबला के मैदान में तशरीफ लाए, वालिद करबला हुए। करबला में जब पहुंचे हैं तो रिवायत बताती है इब्न अबी मखनम के मक्तल के लिहाज से अगर आप देखें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 6 घोड़ों को बदला। घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था, 6 घोड़ों को बदला। आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने घोड़े को रोका। जैसे ही घोड़े को रोका वैसे ही करबला से एक जर्द रंग के गुबार जो वहां से उठा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रेश मुबारक कराया। फिर वो गुबार दोबारा करबला की जमीन से उठा, फिर वो ज़ैनब व कुलसूम के सरों पर जो आया। उसके बाद ये गुबार मदीने पहुंचा। आज़ादारो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी किसी ने गुबार आलूद हालत में नहीं देखा। वो जनाबे हजरत ज़हरा सिद्दीक़ा कुबरा की शहादत के बाद भी किसी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुबार आलूद हालत में नहीं देखा। हत्ता कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद भी रसूल खुदा को किसी ने गुबार आलूद हालत में नहीं देखा। लेकिन गुबार आलूद हालत में किसने देखा? उम्मे सलमा ने देखा कि पैगंबर अकरम गुबार आलूद है। पूछा या नबी अल्लाह गुबार आलूद क्यों है? नबी अल्लाह ने फरमाया ऐ उम्मे सलमा तुम्हें नहीं मालूम, अरे करबला के मैदान में हुसैन और उसके असहाब शहीद हो चुके हैं। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना खैमा नस्ब किया। अब हुसैन की मजलिस, हुसैन की ज़बानी सुनिए। इमाम हुसैन ने वहां कैसे मजलिस पढ़ी? कहा हाँ होना, मनाफ़ और रिहा लेना। ये वही जगह है जहाँ हमारे कारवां ठहरेंगे, ये वही जगह है जहाँ हमारी सवारियां ठहरेंगी, ये वही जगह है जहाँ हमारे
ने मुझसे वादा किया था। उसके बाद फरमाते हैं कि यहाँ पर हमारी कब्रें बनाई जाएंगी, ज़ाहिरीन हमारी ज़ियारत को आएंगे। परवरदिगार आलम हम सबको ज़ियारत अब्दुल्लाह नसीब फरमा कि हम सब करबला जाए और जरी पकड़ करके कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नुल मज़लूम, और अपनी आंखों से वो जुमला देखे कब्र मुबारक पर जिसे सैयद सज्जाद ने दफन करने के बाद अपने बाप की कब्र के ऊपर लिखा हाज़ा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़तलूहु अलशाना, ये हुसैन की कब्र है जिसे 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया गया। परवरदिगार आलम उस मुख्तसर से कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम जो हम सब में परेशान हैं आज की परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार आलम हम सब में बेरोजगार रोजगार अता फरमा। परवरदिगार आलम हम ज़माने को ज़रूर ताज़िल फरमा।